رات گہری ہو چکی تھی جب وہ جنگل والے آسیبی مکان میں آئے۔ عمران اور مشکالی نے باہر سے مکان کی شکستہ حالت دیکھ کر اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ مکان باہری سے آسیب زدہ لگتا ہے۔ ریحان نے کہا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر سے دور ایک سنسان جنگل میں ہے اور ہمیں کسی ایسے ہی مکان کی ضرورت تھی جہاں کوئی آسانی سے ہمارا سراغ نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے، مشکالی بولی، چلو اب اندر تو چلو۔ مکان میں اندھیرا تھا۔ ریحان نے ایک کمرے کی بتی جلا دی، روشنی ہو گئی۔ ایک چمگادڑ پھڑپھڑاتا ہوا کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ بلب کی روشنی بہت دھیمی تھی، فرش پر گرد جمی تھی، کونے میں جالے لٹک رہے تھے۔ مشکالی نے کہا، اس کی کافی صفائی کرنی پڑے گی ہمیں۔ عمران کہنے لگا، وہ ہم صبح کر لیں گے، اس وقت تو مجھے نیند آ رہی ہے، کل بازار سے کچھ بستر اور دوسرا سامان بھی لے آئیں گے۔ کمرے میں ایک پرانی الماری دیوار میں لگی تھی۔ عمران نے اس میں بریف کیس رکھ دیا جس میں انڈین کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ مشکالی نے کہا، تم یہی فرش پر تھوڑی سی جگہ صاف کر کے لیٹ جاؤ، میں باہر پہرا دوں گی اور یہ بھی دیکھوں گی کہ رات کو کس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عمران ریحان نے فرش کو ایک جگہ سے صاف کیا اور کمبل بچھا کر وہیں لیٹ گئے۔ مشکالی مکان کے سین میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ مکان کے آگے چھوٹے سے باغیچے میں ٹہلتی رہی۔ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی، وہ ادھر روشنی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ باغیچے میں گھاس بے تحاشا بڑھ گئی اور وہ بھی جنگل کا ایک حصہ ہی لگتا تھا۔ مشکالی مکان کے پیچھے آ گئی۔ یہاں نیم کے درخت خاموش کھڑے تھے۔ ان درختوں میں سے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی نیچے جنگل میں بہتی ندی تک جاتی تھی۔ مشکالی ندی پر آ گئی۔ پانی ٹھنڈا تھا۔ چونکہ مشکالی کے سر کے بالوں میں عنقا کی دی ہوئی لوہے کی پن لگی تھی، اس لیے اب اسے کسی قسم کے طلسم یا جادو کا کوئی خوف نہیں تھا۔ چند سیکنڈ تک وہ ندی کنارے ٹہلتی اور اندھیرے میں گھنے جنگل کے خاموش درختوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اوپر مکان کے باغیچے میں آ گئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ یہ بات مشکالی کے ذہن میں تھی کہ اس ویران آسیبی مکان میں سے آدھی رات کے بعد کسی عورت یا بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مشکالی نے اپنے کان کھڑے کیے ہوئے تھے، لیکن جنگل میں سوائے خاموشی کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ خاموشی کی آواز ایک سنسناہٹ کی طرح تھی۔ مشکالی ہزاروں سال سے اس آواز کی عادی تھی۔ مشکالی باہر ٹہل کر عمران ریحان کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دے رہی تھی اور اس کے کان آسیبی آواز کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ جب کافی رات گزر گئی اور مکان میں سے کسی کے رونے کی آواز نہ آئی تو مشکالی نے سمجھ لیا کہ یوں ہی کسی نے افواہ اڑا دی ہوگی۔ جب سورج نکل آیا تو مشکالی نے عمران ریحان کو جگا دیا اور کہا، اٹھو، دن چڑھ آیا ہے۔ عمران ریحان جلدی سے اٹھ بیٹھے۔ ہاتھ منہ دھو کر انہوں نے چائے وغیرہ پی۔ ریحان کہنے لگا، مجھے آج بھارتی چیف جاسوس جے ڈی کے خفیہ اڈے پر یہ معلوم کرنے جانا ہے کہ اس پر 6 تخریب کاروں کے قتل کا کیا اثر ہوا اور مجھ پر اس کا شبہ ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ مجھے اس بات کا بھی سراغ لگانا ہے کہ وہ اب کب پاکستان میں تخریب کار بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مشکالی کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ بہت ممکن ہے کہ جے ڈی کو تم پر شک پڑ گیا ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ریحان نے ہاتھ جھٹک کر کہا، اب تم ہر جگہ میری حفاظت کرتی رہو، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ عمران ہنس پڑا، ارے تم تو ناراض ہو گئے ریحان، مشکالی نے ہم سب کی بہتری کے لیے ایسا کہا ہے۔ مشکالی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ریحان اکیلے جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے۔ ریحان نے مشکالی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا مشکالی بہن، ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ میں اکیلا بھی اپنی حفاظت کر سکتا ہوں اور تم سے پہلے اپنی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ عمران کہنے لگا، ٹھیک ہے، مشکالی میرے ساتھ مکان کو ٹھیک کرے گی، تم اکیلے ہی جے ڈی کی طرف چلے جانا، لیکن پستول ضرور ساتھ لے جانا۔ ریحان نے جیب پر ہاتھ مار کر کہا، پستول ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف 6 تخریب کاروں اور 2 جاسوسوں کے قتل کی اطلاع بھارتی چیف جاسوس جے ڈی کو مل چکی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا اور اپنے خفیہ کوٹھی والے اڈے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں باہر پہرے پر کھڑے جاسوس نے آ کر کہا، سر، ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے۔ جے ڈی نے چونک کر پوچھا، کیا اس نے کوڈ کا خفیہ لفظ بولا تھا؟ جاسوس نے کہا، جی ہاں سر، اس نے ٹھیک خفیہ کوڈ بتایا ہے۔ جے ڈی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک سانولے رنگ کا موٹی گردن والا آدمی سیڑھیاں اتر کر طے خانے کے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے عقاب جیسی چمکتی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا اور جے ڈی کی طرف گھور کر دیکھا۔ کیا تم ہی جے ڈی 15 ہو؟ جے ڈی ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا کہ یہ کون ہے، اتنا اسے معلوم تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا ہی کوئی آدمی ہے۔ جے ڈی نے کوڈ لفظ بول کر پوچھا، تمہارا کوڈ کیا ہے؟ آنے والے سامنے آدمی نے اپنا کوڈ بتاتے ہوئے جیب سے
खास शनाख्ती कार्ड निकालकर जेडी को दिखाया और कहा, मैं नंबर 11 हूँ और दिल्ली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से आया हूँ। 15 दिनों के अंदर अंदर हमारे 19-20 तरबियत याफ्ता कमांडो जासूस हलाक हो गए हैं। मैं दिल्ली की तरफ से इन हादसों की तफ्तीश करने आया हूँ। जेडी ने शनाख्ती कार्ड देखा तो फौरन अदब से सलाम किया और कहा, सर आप बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ। वो आदमी बोला, मेरा नंबर 11 है, मगर तुम मुझे मिस्टर शर्मा कहकर बुला सकते हो। दिल्ली हेडक्वार्टर को यकीन है कि ये तीनों हादसे पाकिस्तानी जासूसों की कार्रवाई का नतीजा है। हादसा एक बार हो सकता है, बार बार अगर हादसा हो तो वो तकरीबकारी है। मुझे बताओ कि तुमने अपने कमांडो जासूसों को पाकिस्तान भेजते वक्त किसी से बात तो नहीं की थी? भारतीय चीफ जासूस जेडी ने कहा, सर मैं एक पुराना इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, मैं कैसे किसी गैर आदमी के आगे बात करूंगा? सिर्फ मिस्टर प्रकाश को या मुझे और मेरे बॉडीगार्ड को ही इस मिशन का इल्म होता था। मिस्टर शर्मा की भवें ऊपर चढ़ गईं। ये मिस्टर प्रकाश कौन है? जेडी ने कहा, सर क्या आप उसे नहीं जानते? वो भी दिल्ली हेडक्वार्टर ही से आया है। प्रकाश उसका फर्जी नाम है। उसने मुझे अपना नंबर बताया था, अब याद नहीं रहा। दिल्ली हेडक्वार्टर का जासूस मिस्टर शर्मा उठ खड़ा हुआ। उसने जेडी का कंधा पकड़कर कहा, ये मिस्टर प्रकाश कहाँ रहता है? मुझे उसका पता बताओ, वो नकली जासूस है। क्योंकि दिल्ली हेडक्वार्टर ने सिवाय मेरे किसी आदमी को यहाँ नहीं भेजा। अब तो भारतीय चीफ जासूस जेडी का मुंह खुले का खुला रह गया। मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, एक आदमी हमारा खुफिया कोड किस तरह मालूम करके तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर भरोसा कर लिया। मैं हेडक्वार्टर में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। जेडी ने हाथ जोड़ दिया और बोला, सर मुझसे भूल हो गई, मगर उसने कोड लफ्ज दुरुस्त बताया था। क्या तुमने उसका शनाख्ती कार्ड देखा? मिस्टर शर्मा ने धाड़ कर कहा। जेडी ने हाथ बांध रखे थे, सहमी हुई आवाज में कहा, सर उसने कहा था मैं हेडक्वार्टर का खास जासूस हूँ, मैं शनाख्ती कार्ड अपने पास नहीं रखता। असली जासूस मिस्टर शर्मा सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मिस्टर जेडी तुम्हारी नाअहली की वजह से हमारे दर्जन से ज्यादा तरबियत याफ्ता कमांडो जासूस हलाक कर दिए गए। मुझे बताओ मैं उस नकली जासूस से कहाँ मिल सकता हूँ? वो यकीनन पाकिस्तानी जासूस है और उसी ने हमारे आदमी मारे हैं। जेडी ने फौरन कहा, सर वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। मिस्टर शर्मा ने सोफे से उठते हुए कहा, वो जब आए तो उसे बातों में लगाओ, मैं दूसरे कमरे से निकल कर आऊंगा तो मेरा तारुफ ये कहकर करवाना कि मैं एक नया कमांडो जासूस हूँ और मुझे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस तरह मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी जासूस मुझे किस तरह हलाक कराने की कोशिश करता है और उसके साथी पाकिस्तानी जासूस कौन कौन है। वो अकेला ये काम नहीं कर सकता। बम्बई में जरूर उसके साथी पाकिस्तानी जासूस भी होंगे। हम उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि इस सारे गिरोह को खत्म करके अपना रास्ता साफ किया जा सके। इतने में बाहर से पहरेदार जासूस ने आकर इतला की कि मिस्टर प्रकाश आ रही हैं। मिस्टर शर्मा जासूस ने जेडी से कहा, मैं साथ वाले कमरे में पर्दे के पीछे चुप रहा हूँ, तुम इसे बातों में लगाए रखो। ये कहकर मिस्टर शर्मा लपक कर साथ वाले कमरे में चला गया और भारी पर्दे के पीछे छुपकर उसके खुफिया सुराख में से तकने लगा। जेडी ने पहरेदार से कहा, मिस्टर प्रकाश को अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद रेहान हिंदू जैसे खद्दर के लिबास में माथे पर तिलक लगाए तय खाने में दाखिल हुआ। उसने जेडी को नमस्ते कहा और किसी कदर घबराई हुई उदास आवाज में कहने लगा, मिस्टर जेडी मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर से खबर मिल गई है कि पाकिस्तानी जासूसों ने अपने आदमियों को राजस्थान के बॉर्डर पर हलाक कर दिया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात हुई है। हेडक्वार्टर इसे हमारी लापरवाही समझ रहा है। हमें इस वाकये की बड़ी सख्ती से तहकीकात करनी होगी। जेडी तो अब समझ चुका था कि यह शख्स नकली जासूस है और असल में खुद पाकिस्तानी तखरीबकार है। कहने लगा, सर वाकई ये बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ है। मुझे भी यकीन है कि ये काम सिवाय पाकिस्तानी जासूसों के दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। रेहान को कुछ मालूम नहीं था कि उसके खिलाफ एक गहरी साजिश का जाल तैयार हो चुका है। पर्दे के सुराख में से दिल्ली का असल जासूस मिस्टर शर्मा बड़े गौर से रेहान को देख रहा था। उसने सोचा कि पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, इसको फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जब इसको अजियत दी जाएगी तो ये खुद ब खुद अपने दूसरे पाकिस्तानी जासूस साथियों के बारे में सब कुछ बता देगा। चुनाचे मिस्टर शर्मा ने अपना पहला प्रोग्राम तब्दील कर दिया और इससे पहले कि जेडी रेहान को अपने अगले पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में कुछ बताता, शर्मा ने भरा हुआ रिवॉल्वर जेब से निकालकर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये पाकिस्तानी जासूस निहत्था नहीं होगा, उसके पास भी भरा हुआ पिस्तौल मौजूद होगा। लेकिन शर्मा रेहान को इतना मौका ही नहीं देना चाहता था कि वो जेब में हाथ डालकर पिस्तौल बाहर निकाल सके। असली भारतीय जासूस शर्मा का रिवॉल्वर पूरा भरा हुआ था। वो रेहान को गोली मारकर मारना भी नहीं चाहता था।
क्योंकि उससे उन्हें दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। शर्मा ने पर्दे के पीछे से देखा कि रिहान दोनों हाथ सोफे के बाजुओं पर रखे हुए बड़े इत्मीनान और बड़ी शान से जेडी के साथ बातें कर रहा था। जेडी उसे बता रहा था कि इस बार हमने एक बहुत ही तजुर्बाकार अकेले आदमी को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है जो 100 आदमियों के बराबर होगा। रिहान कुछ बोलने ही वाला था कि शर्मा ने एकदम से पर्दे को पीछे हटाया और छलांग लगाकर इस तरह रिहान के ऊपर आकर गिरा कि उसके रिवॉल्वर की नाली रिहान के माथे पर लगी। रिहान दहशत ज़दा होकर रह गया। उसे कुछ समझ न आई कि यह सब कुछ अचानक क्या हो गया है और ये आदमी कहाँ से निकल आया। शर्मा ने गरज कर जेडी से कहा, इसके हाथ पांव बांध दे जेडी। फिर शर्मा ने रिहान की आंखों में आंखें डाल दी और नफरत से कहा, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है मिस्टर प्रकाश। अब तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकोगे। हमें मालूम हो गया है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और तुमने ही अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों से मिलकर हमारे कीमती आदमियों को कत्ल किया है। जेडी पहले ही तैयार था। उसने मेज की दराज में से नायलॉन की रस्सी निकाली। उसके बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी स्टेन गन्नों की नालियों का रुख रिहान की तरफ कर दिया। उसी वक्त रिहान के हाथ पांव बांधकर उसे सोफे पर डाल दिया गया। दिल्ली के जासूस शर्मा ने रिहान की तलाशी ली। उसकी जेब से भरा हुआ रिवॉल्वर और नकदी निकालकर अपने पास रख ली। फिर वहीं उसका तिब्बी मुआयना किया तो यह बात जाहिर हो गई कि यह शख्स हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। रिहान को यकीन हो गया कि वह पकड़ा गया है, उसका भेद खुल चुका है और अब अपने आप को भारतीय जासूस जाहिर करने का कोई फायदा नहीं। बस अब उसे हर हालत में अपने इरादे को मजबूत बनाना है और इमरान का नाम किसी हालत में भी जुबान पर नहीं लाना। वो जानता था कि अब उस पर शदीद तशद्दुद किया जाएगा, उसे तरह तरह से अजियत दी जाएगी और उससे उसके साथी पाकिस्तानी जासूसों के बारे में पूछा जाएगा। रिहान ने दिल में फैसला कर लिया कि वो मर जाएगा मगर इमरान का नाम नहीं लेगा। अब उसे कोई उम्मीद थी तो सिर्फ इतनी कि शायद वहां इत्तेफाक से मिशकाली आ जाए और उसकी जान बच जाए। उसे अफसोस होने लगा कि वो मिशकाली को अपने साथ क्यों नहीं लाया, जबकि आज सुबह वो उसके साथ आने पर खुद ही असरार कर रही थी। मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। जेडी और दिल्ली के जासूस शर्मा ने गार्ड्स को हुक्म दिया कि रिहान को उठाकर पिछले कमरे में ले चलो। उसी वक्त दोनों गार्ड्स ने रिहान को उठाया और सबसे पिछले कमरे में ले जाकर खाली फर्श पर फेंक दिया। वो चले गए तो शर्मा और जेडी अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। जेडी ने नफरत से रिहान की तरफ देखकर कहा, तुमने हमारे इतने आदमी हलाक किए हैं कि अब हम तुम्हें किसी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी एक सूरत तुम्हारे बचने की है, जासूस शर्मा ने कहा, और वो सूरत ये है कि तुम हमें अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों के नाम और पते बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें उसी वक्त रिहा कर दूंगा और हमारे आदमी तुम्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी पहुंचा देंगे। रिहान ने मजबूत आवाज में कहा, तुम लोग अगर मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा भी कर दो तो मैं अपने वतन से गद्दारी नहीं करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जासूस शर्मा ने जेडी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है? जेडी ने फौरन कहा, यस सर, गाड़ी गैराज में है। जासूस शर्मा ने कहा, इस पाकिस्तानी जासूस को अपनी निगरानी में गाड़ी में ले चलो। थोड़ी देर में रिहान एक बंद जीप में इस तरह फर्श पर बैठा था कि उसके दोनों तरफ 3 आदमी पिस्तौलें उस पर ताने बैठे हुए थे। एक तो रिहान रस्सियों से जकड़ा हुआ था, दूसरा 3 आदमियों ने उस पर पिस्तौल तान रखे थे। इस जीप में से फरार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जीप खुफिया अड्डे वाली पुरानी वीरान कोठी के अहाते से निकलकर शहर की सड़कों पर निकल आई। दिन का वक्त था, सड़कों पर काफी रश था। बम्बई एक ऐसा बड़ा शहर है कि वहां रात गए तक सड़कों पर ट्रैफिक जारी रहता है। रिहान को कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग उसे कहां ले जा रहे थे। वह सोच रहा था कि एक न एक दिन तो उसका पोल खुल ही जाता। इन लोगों का दिल्ली हेडक्वार्टर से राब्ता है। इन्हें एक दिन तो पता चलना ही था कि दिल्ली हेडक्वार्टर ने कौन सा आदमी जेडी के पास भेजा है, और फिर वह मिशकाली के साथ मिलकर ऊपर तले उसके 19-20 आदमियों को पुरस्कार हालात में हलाक कर चुका था। यह आदमी जरूर दिल्ली हेडक्वार्टर से उन खूनी हादसों की तहकीकात करने आया होगा और उसका भेद फाश हो गया। रिहान ने इन बातों को जहन से निकाल दिया। अब वो ये सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान या मिशकाली को उसकी गिरफ्तारी का इल्म हो जाए। उसके बाद मुमकिन था कि मिशकाली उसकी मदद को आती, लेकिन सवाल यह था कि इमरान और मिशकाली को अब कौन उसकी गिरफ्तारी की खबर करेगा। बल्कि अगर इमरान जेडी की खुफिया कोठी में आ गया तो ये लोग उसे भी पकड़ लेंगे। रिहान नहीं जानता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जीप चारों तरफ से बंद थी। चूंकि दिन का वक्त था इसलिए बाहर सड़क के ट्रैफिक की आवाज रिहान को आ रही थी। फिर यह आवाज कम होते होते खत्म हो गई।
जिसका मतलब ये था कि जीप बंबई के शहर से निकलकर किसी वीरान सड़क पर चली जा रही है। रेहान सर झुकाए 3 आदमियों के पिस्तौलों के दरमियान खामोश बैठा था और मिश काली के बारे में सोच रहा था कि काश उसको उसके हाल की खबर हो जाए और वह उसकी मदद को पहुंचे, मगर वो तो यही समझ रहे थे कि रेहान जेडी के खुफिया अड्डे पर गया हुआ है, घंटे 1.5 घंटे तक वापस आ जाएगा। उन्हें क्या खबर थी कि रेहान को कहाँ ले जाया जा रहा है। जीप शहर बंबई से बाहर समुद्र के किनारे एक वीरान सड़क पर भागती चली जा रही थी। 1 घंटे के बाद जीप समुद्र के किनारे एक रेत के टीले के पास खड़ी हो गई। भारतीय जासूस जेडी और शर्मा दोनों जीप से बाहर निकल आए। वो टीले की दूसरी तरफ गए और समुद्र की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी घड़ियों को देखा। जासूस शर्मा ने कहा, उन्हें वायरलेस कर दिया गया है, वो लोग आ रहे होंगे। 5 मिनट बाद समुद्र में दूर से एक छोटी मोटर कश्ती आती दिखाई दी। ये कश्ती समुद्र किनारे आकर रुक गई। इसमें 2 आदमी जिन्होंने नीली वर्दियां पहनी हुई थी किनारे पर आ गए और भारतीय जासूस शर्मा को सलूट किया। भारतीय जासूस शर्मा ने जेडी से कहा, पाकिस्तानी जासूस को ले आओ। थोड़ी देर बाद रेहान को जीप से निकालकर कश्ती में बिठा दिया गया। जीप से बाहर निकालने से पहले रेहान की आंखों पर पट्टी बांधी गई। जेडी जीप में बैठकर वापस चला गया और भारतीय जासूस मोटर कश्ती में रेहान के पास पिस्तौल लेकर बैठ गया और कश्ती समुद्र में रवाना हो गई। रेहान की आंखों पर पट्टी बंदी थी, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कश्ती समुद्र में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। फिर दूर एक जजीरे में ऊंचा मीनार नजर आने लगा। ये एक वीरान लाइट हाउस था जहां अब कोई नहीं रहता था और जहां अब रात को रोशनी भी नहीं होती थी। कश्ती जजीरे के किनारे आकर ठहर गई। यहाँ नीली वर्दियों और खौफनाक करख्त चेहरों वाले 6 आदमी स्टेनगन लिए पहले से खड़े थे। उन्होंने भारतीय जासूस को सलूट किया। शर्मा ने रेहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। करख्त चेहरों वाले आदमियों ने रेहान को उठाकर गाड़ी में डाला और उसे लेकर जजीरे के दूसरे साल के पास बने हुए वीरान लाइट हाउस के मीनार के पास ले आए। फिर उन्होंने रेहान को रोशनी के वीरान मीनार के सबसे निचले तहखाने में डाल दिया और उसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी। रेहान ने अपने आप को एक तंगो तारीख छोटी सी गोल कोठरी में पाया। उसके सामने गजबनाक चेहरों वाले नीली वर्दियों में मलबूस जल्लाद खड़े उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। एक नीली पोश ने जोर से रेहान को ठुड्डा मारा। रेहान झुककर बैठ गया। नीली पोश ने गुर्राकर कहा, तुम पाकिस्तानी जासूस हो। यहाँ हमने पाकिस्तानी जासूसों को दरिंदों के आगे डालने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। और ये कहकर वो गोल कमरे से निकल गए और बाहर से ताला लगा दिया। इस जल्लाद नुमा दरिंदा इंसान का ठुड्डा रेहान की कमर में लगा, जहाँ अभी तक उसे दर्द महसूस हो रहा था। मगर रेहान ने नाउमीदी और मायूसी के जज्बात को अपने दिल से निकालकर फेंक दिया और अपने अंदर एक नई ताकत और हौसला पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। उसे मालूम था कि वो अकेला रह गया है और उसे अकेले रहकर पूरी अज़्म, बहादुरी और दलेरी के साथ इन दरिंदों की कैद से फरार होना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये लोग उसे तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर देंगे। इतना उसे अंदाजा हो गया था कि उसे जीप से उतारकर आंखों पर पट्टी बांधकर एक मोटर कश्ती में सवार कराया गया था, जो काफी देर तक समुद्र में सफर करने के बाद किनारे पर पहुंची। जरूर यह शहर से दूर समुद्र में एक वीरान जजीरा होगा जहां उसे कैद किया गया और भारतीय जासूस या इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत जल्द उससे पूछगिछ करने आएगा और यूं उसको अजियत देने का तकलीफ दे मरहला शुरू हो जाएगा। रेहान के हाथ पांव खोल दिए गए। उसका पिस्तौल और नकदी वहीं खुफिया अड्डे पर जेडी और दिल्ली से आए हुए इंडियन इंटेलिजेंस के अफसर ने छीन ली। रेहान ने उठकर दीवारों को गौर से देखा। ये गोल छोटी सी कोठरी थी जिसकी छत के करीब ऊपर दीवार में से एक ईंट निकाल दी गई थी। उस जगह से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ये तंग गोल कमरा था। इससे रेहान ने अंदाजा लगाया कि यकीनी तौर पर यह किसी वीरान जजीरे के लाइट हाउस का मीनार है जो बेआबाद हो गया है। दीवारें पक्की ईंटों की थीं और उसका प्लस्तर समुद्र की नमदार हवा की वजह से कई जगहों से फूल गया था। रेहान ने एक जगह प्लस्तर को खुरचा। प्लस्तर तो बिखर गया लेकिन नीचे से ईंटें निकल आईं जो बड़ी पुख्तगी से अपनी जगह पर जमी हुई थी। रेहान थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठ गया। गोल कोठरी में कोई चीज ही नहीं थी। सारी कोठरी खाली थी। कोने में सिर्फ लकड़ी का एक पुराना खोखा पड़ा था। रेहान ने उठकर खोखे को देखा, वो खाली था। रेहान वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और बाहर की दीवारों पर कान लगा दिए। बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे समुद्र की लहरें दूर से आकर पत्थरों से टकरा रही हों। इसके सिवा और कोई आवाज नहीं थी। किसी परिंदे की आवाज भी कभी कभी आ जाती। यह समुद्री मुर्गाबियों की आवाज थी जो थोड़ी देर के लिए बुलंद होकर खामोश हो जाती थी। रेहान देर तक खामोश बैठा रहा।
उसका जहन बड़ी तेजी से वहां से फरार के तरीकों पर सोच विचार कर रहा था। अभी तक वहां से फरार होने का कोई तरीका उसके जहन में नहीं आ रहा था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर रेहान का अज़्म बुलंद था, इरादा पुख्ता था, हौसले बुलंद थे और खुदा पर यकीन था और पाकिस्तान से मोहब्बत थी। इसलिए उसे यकीन था कि वो बहुत जल्द यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएगा। शायद घंटा 1.5 घंटा गुजर गया होगा कि दरवाजे का ताला किसी ने बाहर से खोल दिया। फिर दरवाज़ा खुला और अंदर दिन की रोशनी दाखिल हुई। रेहान की आंखें चुंधियाने लगी। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब किसी ने टॉर्च रोशन की। रेहान ने आंखें खोल दी। उसके सामने वही दिल्ली का इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा हाथ में बैद की छड़ी लिए खड़ा था। 3 नीली पोश उसके पीछे खड़े थे, जिनके हाथों में टॉर्चें रोशन थीं। उन टॉर्चों की रोशनी इमरान के चेहरे पर पड़ रही थी। रेहान ने आंखें बंद कर ली। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर ने नीली पोशों से कहा, रोशनी दीवार पर डालो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी रेहान के चेहरे से हटाकर उसका दायरा दीवार पर जमा दिया। गोल कोठरी उस रोशनी की वजह से रोशन हो गई। रेहान ने आंखें उठाकर अपने सामने खड़े जल्लादों को देखा। शर्मा और नीली वर्दियों वालों के चेहरे ऐसे करख्त थे जैसे पत्थरों के बने हुए हों। इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा ने अचानक मुस्कुराते हुए बड़ी नरम आवाज में कहा, अगर तुम हमें सिर्फ अपने साथी पाकिस्तानियों के नाम और पते बता दो तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। मैं भगवान के सामने कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ। रेहान ने कहा, मेरा कोई पाकिस्तानी साथी नहीं है। इंटेलिजेंस अफसर शर्मा ने कई तरह से रेहान को लालच दिया, मगर रेहान अपनी बात पर कायम रहा। आखिर शर्मा ने एकदम से बैद हवा में लहराया और पूरी कुव्वत से रेहान के जिस्म पर दे मारा। रेहान दर्द के मारे वहीं दोहरा हो गया। शर्मा ने रेहान को बुरी तरह बैद से पीटना शुरू कर दिया। रेहान के हलक से दबी दबी चीखें निकलने लगी, मगर उसने एक दफा भी शर्मा से ये न कहा कि मुझे ना मारो, तुम जो पूछते हो मैं बता देता हूँ। जब शर्मा थक गया तो रेहान को गालियां देता अपने नीली पोश आदमियों के साथ कोठरी से निकल गया। गोल कोठरी बंद हो गई। रेहान का सारा जिस्म फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। जिस्म पर कोई ऐसी जगह न थी जहां बैद ना लगे हों। रेहान देर तक फर्श पर पड़ा कराता रहा और खुदा से यही दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मुझे हिम्मत अता कर कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतर सकूं। फिर उसने अपने जिस्म को देखा, वहां नील पड़ गए थे। खुदा का शुक्र है कि उसका चेहरा और आंखें बच गई थीं। जब भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा उसे बैद से पीट रहा था तो रेहान ने अपना चेहरा बाजू में छुपा लिया। सारी रात रेहान गोल कोठरी में दर्द से कराता रहा। दीवार में से जहां ईंट उखड़ी हुई थी वहां से रोशनी आना बंद हो गई तो रेहान समझ गया कि दिन डूब गया है। फिर जब रोशनी हुई तो वो समझ गया कि अब रात गुजर गई है। भूख और प्यास ने उसे अलग परेशान कर रखा था। दूसरे दिन उसका जिस्म ज्यादा दुखने लगा। वो दीवार के साथ सिमट कर बैठा, अपने जिस्म की सूजी हुई जगहों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाता रहा। दोपहर हो गई थी। बाहर से समुद्री मौजों के पत्थरों से टकराने की आवाज उसी तरह आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला। एकदम से दिन की रोशनी अंदर आ गई। रेहान ने आंखों के आगे हाथ रख दिया क्योंकि रोशनी से उसकी आंखें दुखने लगी थीं। ये एक नीली वर्दी वाला आदमी था जिसके हाथ में राइफल थी। उसके पीछे दूसरा नीली पोश था। वो एक टीन का डिब्बा रेहान के आगे रखकर बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। उनके जाने के बाद टीन के डिब्बे को देखा। उसमें पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला था और साथ थोड़े से उबले हुए चावल। रेहान को सख्त भूख प्यास लगी थी। चावल नमकीन थे। रेहान ने 1 मिनट में सारे चावल खा लिए, प्याले का सारा पानी पी लिया। पेट में चावल गए तो रेहान की जान में थोड़ी जान आई। उसे अपने बदन का दर्द भी कम महसूस होने लगा। एक बार फिर उसने वहां से भागने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। देखने में वहां से भागने की कोई तरकीब उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। जाहिर है जहां उसे कैद किया गया था वहां बाहर राइफल वाला गार्ड पहरा दे रहा होगा। रेहान के पास पिस्तौल की एक खाली गोली भी नहीं थी। प्याज काटने वाला चाकू तक नहीं था और फिर उसे कैद किया गया था। उसके इर्द गिर्द समुंदर था। वो अगर यहाँ से निकल भी जाए तो समुंदर में कहाँ तक तैर सकेगा। बहुत जल्द या तो वो तैरते तैरते थक कर डूब जाएगा और या उसे शार्क मछलियां निगल जाएंगी। वो दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई। उससे पूछगिछ करने कोई ना आया। अगले दिन उसे फिर पानी और चावल देकर नीली वर्दी वाला जल्लाद खामोशी से दरवाजा बंद करके चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने उठकर दरवाजे को जरा सा बाहर को धकेला। दरवाजा बाहर से बंद था। जाहिर है उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया होगा। रेहान वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसके जिस्म का दर्द अब बहुत कम हो गया था। वो खामोशी से चावल खाने लगा। उसे मिशकाली और इमरान का ख्याल आ रहा था कि वो उसे जरूर तलाश करने निकल खड़े होंगे। काश उन्हें किसी तरीके से पता चल जाए कि वो समुद्र के किनारे इस वीरान लाइट हाउस वाले जजीरे में बंद है।
मगर उन्हें खबर करने वाला कोई नहीं था। रेहान सब्र शुक्र करके बैठ गया। आधे घंटे बाद नीलीपोश आकर बर्तन उठाकर ले गया। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद दरवाजा एक बार फिर खुला। रेहान का ख्याल था कि वही इंटेलिजेंस अफसर उसे पीटने आया होगा, मगर वो नहीं था। उसकी जगह 2 नीलीपोश और आए थे। उनमें से एक राइफल लिए दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। दूसरा नीली वर्दी वाला बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी खोखे को रेहान के पास रखकर बैठ गया और आगे को झुककर बड़ी मीठी जुबान में बोला, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। ये जो मेरा साथी बाहर खड़ा है ये भी मुसलमान है। मैं तुम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। अगर तुम अपने सिर्फ एक ही पाकिस्तानी साथी का नाम बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा दूंगा। रेहान ने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, और अगर कोई हो भी तो क्या तुम मुसलमान होकर मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं अपने इस्लामी वतन पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करूंगा? अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कोई ख्याल है तो उसे दिल से निकाल दो। मैं सिसक कर मर जाऊंगा, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करूंगा। नीली वर्दी वाले ने कहा, मैं तुम्हारे इस इस्लामी जज्बे की कदर करता हूँ। मुझे भी एक मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तान से मोहब्बत है, मगर मैं तुम्हारी सिर्फ इसी सूरत में मदद कर सकता हूँ कि तुम मुझे अपने किसी एक साथी का नाम बता दो। रेहान ने पुख्ता अज़्म के साथ कहा, तुम कैसे मुसलमान हो कि मुझे इस्लाम के खिलाफ अमल करने पर उकसा रहे हो? इस्लाम ने तो असूलों की खातिर जान कुर्बान कर देने का सबक दिया है। नीली वर्दी वाला उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मेरे अजीज, शायद तुम्हें अभी यकीन न आए, लेकिन यह हकीकत है कि इन लोगों ने तुम्हारे एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया है। उसे भी पूछगिछ के लिए इसी जगह लाया जा रहा है। हमें यकीन है कि वो तुम्हारा ही साथी है। ये कहकर नीली वर्दी वाला अपने साथी के हमरा बाहर चला गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। रेहान परेशान हो गया, कहीं इन लोगों ने इमरान को तो नहीं पकड़ लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी तलाश में निकला हो और इन लोगों के हत्थे चढ़ गया हो? उसे जेडी के खुफिया ठिकाने का पता था। जाहिर है वो वहीं आया होगा और जेडी ने उसे पकड़ लिया। या खुदा, इमरान को हिम्मत अता करना कि वो साबित कदम रहे। रेहान को अपनी परेशानी भूल गई और अब उसे इमरान की फिक्र लग गई। अगर ये पाकिस्तानी जासूस जो उन्होंने पकड़ा है इमरान ही है तो उसे जरूर इसी जगह लाकर बंद कर देंगे और फिर मुमकिन है कि उन दोनों को एक दिन गोली से उड़ा दें। रेहान ने अपना हाथ सीने पर रख लिया और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहा कि मैं मर जाऊंगा मगर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अपने वतन पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इसी कैदी जजीरे में नीली वर्दी वाली पुलिस के चीफ ठाकरे ने अपने आदमियों से मशवरा किया कि इस पाकिस्तानी जासूस का मुंह कैसे खुलवाया जाए और इसके बाकी पाकिस्तानी जासूसों का क्यों कर पता चलाया जाए। इस पर उसके असिस्टेंट ने एक तजवीज़ पेश की। वो कहने लगा, सर, इस पाकिस्तानी जासूस से मालूमात हासिल करने का एक ही तरीका है और वो ये कि हम एक आदमी को पाकिस्तानी जासूस बनाकर उसके पास भेज देते हैं। ये पाकिस्तानी जासूस जो हमारा अपना खुफिया पुलिस का आदमी होगा, कैद खाने में जाकर यही जाहिर करेगा कि वो भी पाकिस्तान के लिए यहाँ जासूसी कर रहा था कि पकड़ा गया। फिर वो उस लड़के को यहाँ से फरार करवाकर शहर में उसके दूसरे साथी पाकिस्तानी जासूसों के पास पहुँचाने की कोशिश करेगा। हमारी पुलिस उनके पीछे पीछे होगी। चुनाचे जब हमारा आदमी उस पाकिस्तानी जासूस लड़के के साथ दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के अड्डे पर पहुंचेगा तो हम उन सबको एक साथ गिरफ्तार कर लेंगे। नीली पोस्ट चीफ ठाकरे को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने फौरन एक पंजाबी हिंदू को बुलाकर उसे सब कुछ समझाया और उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर उससे कहा, जोगिंदर, तुम भारत माता की खातिर एक अहम मिशन पर जा रहे हो। तुम्हें इस पाकिस्तानी जासूस लड़की की कोठरी में पाकिस्तानी जासूस बनकर जाना है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें कुछ चोटें भी लगी हों ताकि पाकिस्तानी जासूस को तुम्हारे जख्म देखकर यकीन आ जाए कि वाकई तुम पाकिस्तानी जासूस हो और पुलिस ने तुम पर जुल्म किया है। इसके बाद नीली पोश चीफ ठाकरे ने हिंदू पंजाबी जोगिंदर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे जिससे उसके चेहरे पर नील पड़ गए और एक आंख सूज गई। इसके बाद नकली पाकिस्तानी जासूस जोगिंदर की पिंडली पर सुन कर देने वाली दवाई लगाकर चाकू से जख्म लगाया गया और पट्टी बांधी गई। वो रात नकली पाकिस्तानी जासूस को दूसरी कोठरी में रखा और उसे खाने को भी कम दिया ताकि उसके चेहरे पर भी कमजोरी नजर आई। दूसरे दिन दोपहर से पहले रेहान अपनी कोठरी में बैठा फरार के मंसूबे पर गौर कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और 2 नीली पोश हिंदुओं ने एक नौजवान को अंदर धक्का दिया और कहा, अब तुम दोनों को इकट्ठे ही गोली से उड़ा दिया जाएगा। नीली पोश पाकिस्तानी दरवाजा बंद करके चले गए। रेहान ने देखा कि एक दुबला पतला नौजवान जिसके चेहरे पर नील के निशान पड़े थे, कपड़े फटे हुए थे, फर्श पर पड़ा करा रहा था। रेहान को एक रोज पहले मुसलमान नीली पोश सिपाही ने बताया था कि उन्होंने बंबई से
एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया है जिसे वो इसे जजीरे में लाकर उससे पूछगिछ करने वाले हैं। मगर रेहान ने अपनी तरफ से उस नौजवान से कोई बात करनी मुनासिब ना समझी। बहरहाल वो उसके करीब आ गया और उसे फर्श पर से उठाते हुए कहा, तुम कौन हो? ये लोग तुम्हें कहाँ से पकड़ लाए? इस पर नकली पाकिस्तानी हिंदू जोगिंदर ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर पंजाबी में कहा, भाई मेरा नाम रफीक अहमद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। सीक्रेट पुलिस के एक खास खुफिया मिशन पर यहाँ आया था कि पकड़ा गया। इन लोगों ने मुझे मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया है, मगर मैंने भी इन्हें कुछ नहीं बताया। मैं मौत को सीने से लगा लूंगा मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकालूंगा। रेहान कोठरी की हल्की रोशनी में उसे सहारा देकर दीवार के पास ले आया, उसे अपने कंबल पर लिटा दिया और कहा, तुम बंबई में अकेले ही थे या तुम्हारे साथ कोई दूसरे लोग भी थे? नकली पाकिस्तानी ने यूं ही दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही आया था। हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ से तकरीबकारों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है, मगर इससे पहले कि मैं इन तकरीबकारों के अड्डे तक पहुंचता, बंबई पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर हाय हाय करने लगा। फिर रेहान की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, तुम भी लाहौर से आए हो या पिंडी से? तुम्हारा नाम क्या है? रेहान के दिल में ख्याल आ गया कि इतनी जल्दी इसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए। वैसे भी जासूस दूसरे जासूस को भी ज्यादा कुछ नहीं बताते, ख्वाब उसका अपना ही आदमी क्यों ना हो। वो एक दूसरे से अपने नाम भी छुपा कर रखते हैं। रेहान ने कहा, रफीक भाई तुम्हें भी अपना नाम मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जासूस जब दुश्मन के इलाके में हो तो कभी किसी को अपना असली नाम नहीं बताता। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने कराते हुए कहा, मेरे भाई मैं अभी नया पाकिस्तान इंटेलिजेंस में भर्ती हुआ हूँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अब किसी को अपना नाम नहीं बताऊंगा और तुमसे भी तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा। वैसे मैंने इन हिंदू काफिरों को अपना नाम नहीं बताया, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर वो एकदम से उठकर बैठ गया और दरवाजे के पास गया। दरवाजे के साथ कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। फिर जल्दी से रेहान के पास आकर बैठ गया और उसे अपनी पिंडली का जख्म दिखाते हुए बोला, यहाँ मुझे चाकू मारकर जख्मी किया गया। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने तुम्हें इस तरह जख्मी क्यों नहीं किया। रेहान बोला, इन्होंने मुझे डंडों से पीटा है। नकली पाकिस्तानी दरवाजे की तरफ एक बार फिर गया, कान लगाकर बाहर सुना और वापस आकर बड़ी राजदारी से बोला, सुनो, मैं इस मनहूस जजीरे पर एक माह से बंद हूँ। मुझे इस जजीरे की कई बातें मालूम हो गई हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम यहाँ से फरार हो सकती हैं। रेहान भी यही चाहता था। उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? इस जजीरे के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, हम यहाँ से क्यों कर भाग सकती हैं? नकली पाकिस्तानी जोगिंदर मुस्कुराया, कहने लगा, यही तो तुम्हें मालूम नहीं। मैंने इस जजीरे में कैद रहकर बड़ी गहरी नजर से एक एक चीज का जायजा लिया है। इस मनहूस जजीरे पर हफ्ते की शाम को एक स्टीमर खाने पीने का सामान लेकर आता है और रात के 12 बजे वापस चला जाता है। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं तो उस स्टीमर के जरिए यहाँ से फरार हो सकती हैं। रेहान ने कहा, पहले तो यहाँ से निकलना मुहाल है, फिर स्टीमर पर सवार होते हुए पकड़े जाएंगे। नकली पाकिस्तानी जासूस को तो नीली पोस्ट चीफ ने सब कुछ समझाकर भेजा हुआ था। उसने राजदारी से धीमी आवाज में कहा, तुमने शायद पाकिस्तान में जूडो कराटे की ट्रेनिंग ना ली हो, मगर मैं जूडो कराटे का माहिर हूँ। मेरा प्रोग्राम यह है कि आज शाम को जब यहाँ का आदमी हमारे लिए चावल लेकर आए तो हम उसे इसी जगह दबोच लेंगे। मैं उस आदमी को काबू करूंगा जो खाने का डिब्बा लेकर आएगा और तुम उसके पीछे खड़े दूसरे सिपाही को काबू करोगे। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता यहाँ से निकलने का नहीं। हो सकता है इसमें हमारी जानें चली जाएं, लेकिन हमें अपनी जान हथेली पर रखकर ये खतरनाक कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला ये काम कर गुजरूंगा, ख्वाह इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रेहान पर उस पाकिस्तानी के जज्बे का बहुत असर हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं जूडो कराटे नहीं जानता। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर को मालूम था कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। जो 2 नीली पोस्ट खाना लेकर शाम को आ रहे थे उन्हें समझा दिया गया कि वो जानबूझकर पहले ही घूंसे पर गिर पड़ेंगे और ये जाहिर करेंगे कि जैसे वो बेहोश हो गए हैं। इसलिए नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं जूडो कराटे का माहिर हूँ, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। हमें हर सूरत में यहाँ से फरार होना है। कल हफ्ता है, कल शाम स्टीमर जजीरे पर आ रहा है। हम इंशाल्लाह उस स्टीमर के जरिए इस जहन्नुम से निकल भागेंगे। 2 दिन और रात गुजर गई। अगला दिन चढ़ गया। नीली पोस्ट खाना लेकर आए और उन्होंने रेहान और नकली पाकिस्तानी जासूस जोगिंदर को अपनी बताई हुई साजिश के तहत गालियां दी और नकली पाकिस्तानी से कहा, अरे तुम भी इसके साथ मारे जाओगे, हमारे चीफ को अपने साथियों के नाम बता दो। नकली पाकिस्तानी ने सीना फुलाकर कहा, मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मर जाऊंगा, मगर अपने किसी साथी का नाम नहीं बताऊंगा।
रेहान ने भी ऐसे ही अज़्म का इजहार किया। नीली पोश सिपाही उन्हें बुरा भला कहते वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने चावल खाते हुए कहा, ये दरिंदे अभी हम पर इसलिए तशद्दुद नहीं कर रहे कि हमारे पहले जख्म ठीक हो जाएं। कल से ये फिर हमें अजियत देना शुरू कर देंगे, मगर कल खुदा ने चाहा तो हम इस मनहूस जगह से फरार हो चुके होंगे इंशाल्लाह, रेहान ने कहा। फिर उसने पूछा, रफीक भाई हम यहाँ से तो निकल जाएंगे मगर स्टीमर पर कैसे सवार होंगे? वहां तो हमें पहचान लिया जाएगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम क्या समझते हो कि मैं इतना ही अहमक हूँ? सुनो, जब हम शाम को खाना लेकर आने वाले नीली पोशों को मार गिराएंगे तो उनकी नीली वर्दियां पहन लेंगे, फिर हम पर कोई शक नहीं करेगा। रात का वक्त होगा, हमें कोई आसानी से पहचान भी नहीं सकेगा और हम बड़े आराम से स्टीमर पर सवार हो जाएंगे। दिन गुजरता चला गया। अब नकली जासूस जोगिंदर ने अपने प्रोग्राम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए रेहान से कहा, यार ये बताओ कि फर्ज कर लिया हम यहाँ से फरार हो जाते हैं और बम्बई पहुँच जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ जाकर कहाँ पनाह लेंगे? जाहिर है इनको हमारे जाने के थोड़ी देर बाद हमारे फरार का पता चल जाएगा और बम्बई की सारी पुलिस हमारी तलाश में जगह जगह छापे मारना शुरू कर देगी। हमारे लिए किसी ऐसी जगह का होना ज़रूरी है जहाँ हम 1-2 रातों के लिए पनाह ले सकें। उसके बाद हम पंजाब की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहां से मैं बॉर्डर क्रॉस करवा सकता हूँ। रेहान ने कहा, हम बम्बई के बाहर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। अब नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने पूछ ही लिया, मेरा तो बम्बई में कोई साथी नहीं है, क्या तुम्हारा कोई साथी है? मेरा मतलब है अगर तुम्हारा कोई साथी बम्बई में किसी जगह मौजूद हो तो हम उसके पास जाकर छुप सकते हैं। रेहान के पास बम्बई शहर के बाहर वो मकान मौजूद था जहां इमरान और मिशकाली रह रहे थे। वो आसानी से उसे अपने साथ वहां ले जा सकता था, लेकिन रेहान ने उस जगह का नाम लेना मुनासिब ना समझा। वो नहीं चाहता था कि किसी को उस जगह का पता चले, ख्वाह वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। गो अभी तक रेहान को इस नकली पाकिस्तानी जोगिंदर पर शक नहीं हुआ था। रेहान ने सोचा कि अभी से इमरान मिशकाली के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, पहले यहाँ से फरार हो जाती हैं, फिर जब वक्त आया तो वो उसे लेकर इमरान मिशकाली के पास चला जाएगा। चुनाचे रेहान ने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी इंडिया में अकेला ही आया था, यहाँ मेरा ऐसा कोई साथी नहीं है जिसके पास हम पनाह ले सकें। हमें जंगल में ही किसी जगह पनाह लेनी पड़ेगी। मगर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर तो रेहान से उसके साथी पाकिस्तानियों का सुराग लगाना चाहता था। जजीरे की नीली पोश पुलिस ने यह सारा ढोंग इसीलिए रचाया था कि रेहान के साथी पाकिस्तानी जासूसों और उनके ठिकाने का पता चलाया जा सके, और रेहान उसे कुछ नहीं बता रहा था। फिर भी जोगिंदर ने अक्लमंदी से काम लिया और बोला, ठीक है हम किसी जंगल में ही पनाह लेंगे, लेकिन हमारे वहां पकड़े जाने का बराबर खतरा रहेगा, क्योंकि इस जजीरे की पुलिस बम्बई की पुलिस से मिलकर बम्बई के इर्द गिर्द के सारे जंगल को भी घेरे में ले लेगी। 2 पाकिस्तानी जासूसों का भाग जाना कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है पुलिस की मदद को फौज भी आ जाए, फिर हम जरूर पकड़ लिए जाएंगे, और हो सकता है ये लोग हमें वहीं गोली से उड़ा दें। रेहान ने जवाब में कहा, बम्बई में मेरा एक वाकिफ है, हम उसके पास चले जाएंगे। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर का दिल बाग बाग हो गया, यही वो मालूम करना चाहता था। इसी राज की बम्बई की पुलिस को जरूरत थी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, मगर वो रहता कहाँ है? मेरा मतलब है हम जजीरे से निकलकर किस तरफ जाएंगे? रेहान को अब भी उस पर शक ना हुआ, कहने लगा, मैं ये बात तुम्हें वहां चलकर बता दूंगा, बल्कि बताने की भी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जोगिंदर ने ज्यादा कुरीदना मुनासिब न समझा कि कहीं उसे शक न पड़ जाए। कहने लगा, ठीक है अब हमें यहाँ से फरार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1 घंटे बाद जेल के आदमी हमारा खाना लेकर आ जाएंगे। फिर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान को समझाया कि वो कहाँ से हमला करेगा और उसे किस तरह छलांग लगाकर पहरेदार की बंदूक छीन लेनी होगी। रेहान ने पूरी तरह हर दाव समझ लिया। रेहान ने कंबल पर लेटते हुए कहा, भाई रफीक मैं थोड़ी देर आराम न कर लूं? रात को मच्छरों ने बिल्कुल नहीं सोने दिया, 1 घंटे से पहले मुझे उठा देना, मैं बिल्कुल ताज़ा दम हूँगा। जोगिंदर को क्या एतराज हो सकता था? उसने कहा, हाँ हाँ भाई तुम आराम करो, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद जगा दूंगा। रेहान ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। फिर उसे नींद आ गई। वाकई रात को उसे मच्छरों ने सोने नहीं दिया। वैसे भी रेहान कुछ देर आराम करना चाहता था। वो सोया रहा और जोगिंदर करीब ही बैठा सिगरेट पीता रहा। एक बार वो दरवाजे के पास भी गया, मगर अब 1 घंटा रहता था। वो तो जानता था कि पहरेदार उसके अपने आदमी है और ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है। इतने में दरवाजे को किसी ने खोला तो चिड़चिड़ाहट की तेज आवाज पैदा हुई। इत्तेफाक से रेहान की आंख खुल गई, मगर अभी उस पर नींद का गलबा था। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। दरवाजे में से एक पहरेदार ने सर अंदर करके जोगिंदर से पूछा, सर हम 15 मिनट बाद आ रहे हैं।
जोगिंदर ने तड़प कर रेहान को देखा। वो तसल्ली करना चाहता था कि कहीं ये बात रेहान ने तो नहीं सुन ली। जब उसने देखा कि रेहान गहरी नींद सो रहा है और हल्के हल्के खराटे भी ले रहा है तो लपक कर दरवाजे में गया। मगर रेहान ने आने वाले पहरेदार का फिक्रा सुन लिया और अब वो सब कुछ समझ गया कि ये शख्स असली पाकिस्तानी नहीं है और पुलिस ने उसे रेहान से उसके साथियों का राज मालूम करने की खातिर नकली पाकिस्तानी जासूस बनाकर अंदर भेजा है और ये सारा ड्रामा हो रहा है। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने पहरेदार की गर्दन को पकड़कर झिंझोड़ा और गुस्से में आहिस्ता से कहा, बदबख्त, तुम क्यों आ गए? आहिस्ता क्यों नहीं बोले? दफा हो जाओ और पहरेदारों को खाना देकर भेजो। पहरेदार फौरन चला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। जोगिंदर दबे पांव चलकर रेहान के पास आया। रेहान ने यह फिक्रा भी सुन लिया था और अब तो उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि यह झूठा शख्स है और इंडियन सीआईडी का आदमी है और खास मंसूबे के तहत पुलिस से मिलकर उसे वहां से भगा रहा है। और जब रेहान उसे अपने साथी के घर ले जाएगा तो पुलिस एकदम से छापा मारकर रेहान समेत उन सबको गिरफ्तार कर देगी। रेहान उसी तरह नकली खराटे लेता रहा। जोगिंदर ने जब देखा कि रेहान खराटे ले रहा है और सोया हुआ है और उसने उनकी बातें नहीं सुनी तो उसे इत्मीनान हो गया और खामोशी से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। रेहान ने भी दिल में फैसला कर लिया कि वो इस ड्रामे से फायदा उठाएगा और फरार होने के बाद इस मक्कार हिंदू नकली पाकिस्तानी को भी धोखा देकर भाग जाएगा। सबसे अहम बात इस मनहूस जजीरे से फरार होना था। रेहान ने यूं ही एक जोर का खराटा लिया और मुंह पर हाथ फेरते हुए उठ बैठा। फिर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर की तरफ देखकर बोला, रफीक भाई, क्या अभी शाम नहीं हुई? वो लोग खाना लेकर नहीं आए? नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने कहा, आहिस्ता बोलो, बस शाम होने वाली है। वो लोग खाना लेकर रात के वक्त आते हैं। जल्दी से उठकर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जोगिंदर ने रेहान को समझाया कि वो कहाँ खड़ा होगा और किस तरह से दूसरे सिपाही पर हमला करेगा। रेहान को अब खूब मालूम हो चुका था कि सब ड्रामा हो रहा है और पहरेदार सिपाही उसके एक ही मुक्के से गिरकर बेहोश हो जाएगा, क्योंकि स्कीम के मुताबिक सिपाही को यही समझाया गया। वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान नकली पाकिस्तानी और इंडियन सीआईडी अफसर जोगिंदर ने रेहान से एक बार फिर ये मालूम करने की कोशिश की कि बम्बई में उसका साथी किस इलाके में रहता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम जजीरे से निकलते ही उसी तरफ रवाना हो जाएं। अब रेहान पर चूंकि सारा पोल खुल चुका था, चुनाचे उसने कहा, रफीक भाई, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें बता ही देना चाहिए कि मेरे साथी पाकिस्तानी कहाँ रहते हैं। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दिल में बेहद खुश हुआ। यही तो वो मालूम करना चाहता था। कहने लगा, उनका पता बताने से हमें बड़ी आसानी होगी। हम जजीरे से निकलते ही उस तरफ भाग चलेंगे। रेहान भी अब मक्कारी और अय्यारी से काम ले रहा था। उसने कहा, तुमसे मैं कुछ नहीं छुपा सकता रफीक भाई। मेरे साथ 2 पाकिस्तानी हैं जो इमरावती की आबादी के पीछे जंगल के एक मकान में रहते हैं और हम वहीं जाकर पनाह लेंगे। वो जगह बिल्कुल महफूज है। नकली पाकिस्तानी और इंडियन इंटेलिजेंस अफसर जोगिंदर के लिए पहली बड़ी कामयाबी थी। उसने अपने ख्याल में रेहान से पहला सबसे अहम राज हासिल कर लिया कि उसका एक साथी पाकिस्तानी जासूस इमरावती के जंगल के एक मकान में छुपा हुआ है। अब उस पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करना बाकी था, जिसे ये इंडियन इंटेलिजेंस अफसर आसानी से गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब वो रेहान के साथ इमरावती के जंगल में जाएगा तो पुलिस छुपकर उसके पीछे चल रही होगी। जो ही वो दूसरे पाकिस्तानी जासूस के ठिकाने पर पहुंचेंगे, पुलिस एकदम से छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लेगी। रेहान को भी अच्छी तरह से मालूम था कि उसके गिर्द साजिश का जाल फैला दिया गया है और इमरावती के जंगल में जाते ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर इमरावती के जंगल में रेहान का कोई साथी नहीं रहता था। उसने ये सब कुछ पुलिस को गलत रास्ते पर डालने के लिए बताया और उसका इरादा रास्ते में ही मौका पाकर फरार हो जाने का था। अब उसे सिर्फ इस मनहूस जजीरे से निकलने का इंतजार था। रात हो गई। रेहान और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दोनों ही अपने अपने जहन में अलग अलग मंसूबे बनाकर बैठे थे। आखिर पहरेदारों के खाना लेकर आने का वक्त हो गया। बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान से आहिस्ता से कहा, दरवाजे वाली दीवार के साथ चले जाओ, जल्दी करो। रेहान उठकर दरवाजे के साथ ही दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। मंसूबे के मुताबिक एक पहरेदार खाने का डिब्बा लेकर जोगिंदर की तरफ आया और दूसरा दरवाजे में से जरा आगे आकर खड़ा हो गया। जो ही पहला पहरेदार नकली पाकिस्तानी के पास आया, उसने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली और नीचे गिरा दिया। फिर एक मुक्का उसकी गर्दन पर मारा और यह जाहिर किया कि वह बेहोश हो गया है। दूसरी तरफ रेहान ने भी उछलकर दूसरे पहरेदार को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया और जोर से उसकी गर्दन पर घूंसा मारा। चूंकि दोनों पहरेदारों को पहले ही से बता दिया गया था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए दोनों पहरेदार एक एक घूंसा खाने के बाद बेहोश हो गए। हालांकि आम हालात में वो कभी बेहोश नहीं हो सकते थे।
मगर यही मंसूबे का तकाजा था। ड्रामा इसी तरीके से खेला जा रहा था। जोगिंदर ने रेहान से कहा, जल्दी से इनकी वर्दी उतार कर पहन लो। रेहान और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने जल्दी जल्दी पहरेदारों की वर्दियां उतार कर पहन ली। दोनों पहरेदार होश में थे मगर जानबूझकर बेहोश पड़े थे। जोगिंदर ने रेहान को इशारा किया और उसे कोठरी से बाहर ले आया। बाहर अंधेरा था मगर उसी अंधेरे में वहां से दूर 3 पुलिस अफसर खड़े उनकी नकलो हरकत का जायजा ले रहे थे। वो खुद रेहान को नकली पाकिस्तानी जोगिंदर के साथ फरार होने का मौका दे रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि दूर पुराने लाइट हाउस के मीनार वाली कोठरी से निकल आए हैं तो दूसरी तरफ चले गए। जोगिंदर ने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक रेहान को अपने साथ लिया और पत्थरों और झाड़ियों के पीछे से अंधेरे में गुजरता समुद्र के किनारे उस जगह आ गया जहां समुद्र में एक बड़ा स्टीमर खड़ा था। उसमें से सामान उतारा जा रहा था। वहां रोशनी थी। रेहान को अब सब कुछ मालूम हो चुका था कि यह सारा ड्रामा खेला जा रहा है। फिर भी वो ये जाहिर कर रहा था कि उसे कुछ नहीं मालूम और वो उसे ड्रामा नहीं समझ रहा बल्कि वो हकीकत में वहां से फरार हो रही हैं। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। रेहान ने घबराई हुई आवाज में कहा, रफीक, हमें किसी जगह छुप जाना चाहिए। ये लोग हमें वर्दियों में भी कहीं पहचान ना लें। जोगिंदर ने भी झूठ बोलते हुए कहा, इनका बाप भी हमें नहीं पहचान सकता। हम सिर्फ उतनी देर यहाँ छुपे रहेंगे जब तक स्टीमर यहाँ से नहीं चलता। बस तुम मेरे पीछे पीछे चले आना और कुछ ना बोलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वो दोनों एक जगह पत्थरों के पीछे छुपकर बैठ गए। रात गुजरती चली गई। दूसरी तरफ नीली पोश पुलिस के चीफ ठाकरे ने अपने पुलिस वालों से कहा, हमारा आदमी पाकिस्तानी जासूस को साथ लेकर निकल गया है। वो पत्थरों में छुपे हुए हैं। स्टीमर के चलने पर वो भागकर स्टीमर की तरफ जाएंगे। खबरदार कोई उनके करीब भी ना जाए। तुम लोग बाद में स्टीमर पर सवार होगे। ये 5 पुलिस वाले थे मगर उन्होंने वर्दियां नहीं पहनी हुई थी बल्कि आम कपड़ों में थे। मगर उन्होंने अपने पास पिस्तौल रख लिए जो भरे हुए थे। उन्हें हुक्म था कि जो ही अपने आदमी यानी नकली पाकिस्तानी एक खास आवाज निकाले वो एकदम से हमला करके पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लें। चीफ ठाकरे ने वायरलेस पर बंबई की पुलिस को भी खबरदार कर दिया कि वो भी तैयार रहें। जब रात के 11:30 बजे तो स्टीमर ने पहली सीटी बजाई। स्टीमर को तीसरी सीटी पर समुद्र में रवाना हो जाना था। जोगिंदर ने रेहान से कहा, आ जाओ, और वो दोनों पत्थरों के पीछे से निकलकर स्टीमर की तरफ बढ़े। वहां कुछ गार्ड पहले से मौजूद थे। 2 पुलिस वालों को आता देखकर वो स्कीम के मुताबिक परे हट गए और उन्होंने नकली पाकिस्तानी और रेहान को सलूट मारा। रेहान दिल में खुश हो रहा था कि उसे इन लोगों की अय्यारी और मक्कारी की वजह से वहां से फरार होने का आसानी से मौका मिल गया। बस अब जजीरे से निकलने के बाद बंबई की सड़कों पर पहुंचकर इनके चुंगल से निकलने का खतरनाक प्रोग्राम बाकी था। वहां खतरा था कि कहीं वो दोबारा न पकड़ा जाए या गोली लगने से जख्मी न हो जाए। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर और रेहान स्टीमर पर सवार होकर ऊपर डेक पर एक तरफ जाकर बैठ गए। जोगिंदर ने रेहान से कहा, खुदा का शुक्र है हम स्टीमर पर सवार हो गए। रेहान ने भी अदाकारी करते हुए कहा, किसी को हम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। जोगिंदर बोला, शक कैसे हो सकता है, हम पुलिस की वर्दी में हैं, हम पर कौन शक करेगा। अब यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना, हम 1 घंटे में बंबई के साहिल पर पहुंच जाएंगे, रेहान ने कहा, और वहां से सीधे हम इमरावती के जंगल में अपने साथी के पास पहुंच जाएंगे। जोगिंदर ने थोड़ा सा कुरीद कर पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पाकिस्तानी साथी वहीं होगा। रेहान ने बड़े एतमाद से कहा, वो तो रात को वहीं अपने जंगल वाले मकान में होता है, क्योंकि वहां हमें रात को पाकिस्तान से वायरलेस सिग्नल आती हैं। जोगिंदर दिल में बड़ा खुश हुआ कि वहां वायरलेस सेट भी है और यूं इंडियन इंटेलिजेंस को इन पाकिस्तानी जासूसों का कोड भी मालूम हो जाएगा। यानी ये पता चल जाएगा कि ये जासूस एक दूसरे से किस खुफिया जुबान में बात करते हैं। स्टीमर चल पड़ा। स्टीमर पर नीली पोश पुलिस के 5 आदमी भी आम सादे कपड़ों में सवार होकर बैठ गए। 1 घंटे बाद स्टीमर बंबई के साहिल के साथ जा लगा। यहाँ बंबई की पुलिस के 5 आदमी आम सफेद कपड़ों में भरी हुई पिस्तौलें छुपाए मौजूद थे। वो दूर दूर थे। जो ही रेहान और उनका अफसर जोगिंदर स्टीमर से उतरकर अंधेरे में सड़क पर एक तरफ रवाना हुए, ये पुलिस के आदमी भी कुछ फासला रखकर उनका ताकुब करने लगे। एक बड़ी गहरी साजिश के तहत रेहान के इर्द गिर्द पुलिस ने अपना जाल तैयार कर लिया। उनको ये मालूम नहीं था कि रेहान भी उनको बेवकूफ बना रहा है। पुलिस ये समझ रही थी कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो गई है और थोड़ी देर बाद रेहान का साथी पाकिस्तानी जासूस भी इमरावती के जंगल में रेहान के साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि इमरावती के जंगल में रेहान का कोई साथी जासूस नहीं है। रेहान ने रास्ते में ही फरार होने का मंसूबा बनाया था। रात के वक्त बंबई की सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं था। ये बंबई के बाहर का इलाका था और यहाँ सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। अब रेहान को इस हकीकत का पूरा एहसास था
कि पुलिस उसके गिर्द चारों तरफ मौजूद है और वह भी उनके साथ साथ चल रही है। इसके बावजूद वो इस मौके की तलाश में था कि इस अय्यार इंडियन इंटेलिजेंस अफसर को धोखा देकर किसी तरीके से भाग जाए, जो नकली पाकिस्तानी बनकर उनके साथ फरार होने का ढोंग रचाए चल रहा था। अभी वहां से भागने का कोई मौका नहीं था। सड़क दूर तक खुली और साफ थी। अगर यहाँ से रेहान भागता है तो उसको बड़ी आसानी से गोली मारकर जख्मी किया जा सकता था। चलते चलते नकली पाकिस्तानी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ रुक कर किसी टैक्सी का इंतजार करना चाहिए। इमरावती का जंगल यहाँ से काफी दूर है। रेहान टैक्सी में नहीं सवार होना चाहता था, वो उसे किसी रेलवे स्टेशन पर ले जाना चाहता था। रेलवे स्टेशन से रेहान के लिए फरार होना ज्यादा मुमकिन था। उसने कहा, जंगल तक टैक्सी नहीं जा सकेगी, जहाँ मेरे साथी पाकिस्तानी का झोंपड़ा है। उस जंगल के पिछली तरफ एक रेलवे लाइन गुजरती है और वहाँ थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन है। ये लोकल रेलवे स्टेशन है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। मैं 2-1 बार वहां से उतरकर जंगल में अपने पाकिस्तानी साथी के झोंपड़े में गया हूँ। नकली पाकिस्तानी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो फिर क्यों ना यहाँ लोकल स्टेशन से ट्रेन पकड़ें, क्योंकि यहाँ से इमरावती तक लोकल ट्रेन जाती है। रेहान को और क्या चाहिए था, उसने फौरन कहा, बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम पुलिस वालों की नजरों से बचकर बड़ी जल्दी इमरावती पहुंच जाएंगे। रेहान ने नकली पाकिस्तानी को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने पर राजी कर लिया। रेहान को अब बम्बई के सारे इलाके मालूम हो चुके थे। रात का 1 बज रहा था कि वो उस इलाके के लोकल रेलवे स्टेशन पर आ गए। पुलिस भी छुपकर उनका पीछा करती आ रही थी। रेलवे स्टेशन पर रश बिल्कुल नहीं था। 2-4 मुसाफिर बैठे ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर आकर रेहान ने कहा, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। और रेहान वेटिंग रूम के बाथरूम में दाखिल हो गया। उसके जाते ही 2 पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने आम कपड़े पहने हुए थे, नकली पाकिस्तानी जोगिंदर के पास आए। एक अफसर ने कहा, सर, ये आदमी कहीं भाग तो नहीं जाएगा? जोगिंदर ने गुस्से में कहा, तुम किस लिए यहाँ हो? गुसल खाने के पीछे जाकर निगरानी करो। दोनों पुलिस ऑफिसर वेटिंग रूम के पीछे की तरफ चले गए, मगर उधर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रेहान गुसल खाने में था। उसने भी महसूस किया कि वहां से वो फरार नहीं हो सकता। वो बाहर आ गया। प्लेटफॉर्म पर नकली पाकिस्तानी उसके इंतजार में वेटिंग रूम के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। रेहान को देखते ही बोला, अब इधर उधर मत जाओ, खामखा किसी पुलिस वाले को शक पड़ जाएगा। इतने में ट्रेन आ गई और वो ट्रेन में सवार हो गए। पुलिस के साथी भी दूसरे डिब्बे में सवार हो गए। ट्रेन इमरावती के लोकल स्टेशन की तरफ जा रही थी और रेहान सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अगर उसने होशियारी से काम लेकर राह फरार इख्तियार ना की तो उसका पोल खुल जाएगा, क्योंकि इमरावती के जंगल में कोई ऐसा मकान नहीं था जहां उसका कोई पाकिस्तानी साथी छुपा हुआ हो। रेहान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ट्रेन शोर मचाती रात के अंधेरे में भागी जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। आगे कोई स्टेशन आ रहा था। रेहान ने नकली पाकिस्तानी जोगिंदर से कहा, मैं जरा बाथरूम से हो आऊं। नकली पाकिस्तानी यानी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को अगर रेहान पर शक होता तो वो उसे कभी बाथरूम की तरफ ना जाने देता, मगर रेहान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही थी कि उस भारतीय जासूस को रेहान पर अभी तक शक नहीं हुआ। इस मामले में रेहान की होशियारी और अय्यारी उस भारतीय जासूस पर बाजी ले गई। उसने रेहान को बाथरूम में जाने दिया। रेहान बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके वो ट्रेन की रफ्तार के और मध्यम होने का इंतजार करने लगा। बाथरूम की खिड़की पर शीशा लगा था और अंदर की तरफ लोहे की सलाखें भी लगी हुई थी। बम्बई शहर में जो रेलगाड़ियां चलती हैं उनकी तमाम खिड़कियों पर सलाखें लगी होती हैं। इस तरह से चलती गाड़ी में ना तो बाहर से कोई अंदर दाखिल हो सकता है और ना अंदर से कोई बाहर छलांग लगा सकता है। रेहान बाथरूम की खिड़की से छलांग नहीं लगा सकता था। जब गाड़ी की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि रेहान ने महसूस किया कि वो अगर बाहर छलांग लगाए तो उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी, तो वो बाथरूम से बाहर निकलकर यूं ही ताज़ा हवा लेने के लिए डिब्बे का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। नकली पाकिस्तानी ने दूर से कहा, कहीं गिर ना जाना। रेहान इसीलिए तो दरवाजे में आया था, बाहर अंधेरा था। ट्रेन खटाखट आगे चली जा रही थी। रेहान ने अल्लाह का नाम लेकर एकदम से बाहर छलांग लगा दी। वो एक जगह झाड़ियों में गिरा और लुढ़कता चला गया। वो अंदाजा कर सकता था कि उसके छलांग लगाने से पीछे डिब्बे में बैठे हुए इंडियन सीआईडी अफसर और नकली पाकिस्तानी पर क्या गुजरी होगी। वो उठा और उसने ट्रेन के उल्टे रुख दौड़ना शुरू कर दिया। उसने पीछे की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे की सुर्ख रोशनी अंधेरे में दूर होती जा रही थी, मगर कुछ फासले पर बंबई के किसी लोकल स्टेशन की रोशनियां भी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि ट्रेन वहां जाकर रुकने वाली थी। लेकिन ट्रेन उससे पहले ही रुक गई। नकली पाकिस्तानी ऑफिसर ने रेहान को छलांग लगाते देखकर जल्दी से जंजीर खींच दी थी और ट्रेन रुकने लगी, मगर इस दौरान रेहान रेल की पटरी से परे हटकर
खेतों में से दौड़ते हुए एक छोटी सी सड़क पर आ गया। रात के अंधेरे में पीछे से किसी मोटर गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। उसने बगैर कुछ सोचे हाथ दे दिया। ये एक ट्रक था जिस पर माल लदा हुआ था और उसका ड्राइवर सिख था। सिख ड्राइवर ने रेहान को देखकर कहा, ओए, तुम सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम तो नीली वर्दी में हो, क्या किसी कारखाने में काम करते हो? रेहान ने कहा, हाँ सरदार जी, रात की शिफ्ट पर जा रहा हूँ, देर हो गई है। कारखाने लेट गया तो मेरी एक रात की तनख्वाह कट जाएगी। सिख ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? सिख ड्राइवर बड़ा खुश मिजाज था। उसने रेहान को अपने साथ ट्रक में बिठा लिया और ट्रक तेजी से आगे रवाना हो गया। रेहान को मालूम था कि स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होते ही पुलिस को वायरलेस करके खबरदार कर दिया जाएगा कि पाकिस्तानी जासूस भाग गया है और इसके साथ ही पुलिस इस इलाके को घेरे में ले लेगी। पुलिस को यह भी बता दिया जाएगा कि पाकिस्तानी जासूस ने जजीरे की पुलिस की नीली वर्दी पहन रखी है। इसलिए एक तो रेहान जल्दी इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था और दूसरा वो इस नीली वर्दी को उतार देना चाहता था। सिख ड्राइवर बड़ी तेजी से ट्रक चला रहा था। वो 15 मिनट बाद काफी दूर निकल गया। अब दूर से रेहान को एक कारखाने की रोशनी दिखाई दी। उस कारखाने के करीब से वो सड़क गुजरती थी जो उनके पहले वाले समुद्र किनारे के बंगले और फिर वहां से आगे उनके नए जंगल वाले मकान की तरफ जाती थी। कारखाने के करीब जब ट्रक पहुंचा तो रेहान ने सिख ड्राइवर से कहा, बस सरदार जी, मेरा कारखाना आ गया है। सिख ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया और कहा, जाओ पुत्रा, काम करो। रेहान ट्रक से उतरकर सड़क के किनारे किनारे दरख्तों के अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता समुद्र वाले बंगले की तरफ चलने लगा। वहां से उसे अपने जंगल वाले नए मकान का रास्ता आता था, इसलिए वो चाहता था कि पहले अपने पुराने बंगले पर पहुंचे और वहां से नए मकान की तरफ रवाना हो जाए। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अंधेरे में अपने पुराने बंगले का धुंधला खाका नजर आने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसे अचानक सड़क पर पुलिस की गाड़ी का तेज शोर सुनाई दिया। रेहान घबराया। पुलिस उसका ताकुब करती वहां तक पहुंच गई थी। वो दौड़कर अपने पुराने बंगले के गेट के पास आया। बंगला अभी खाली था, उसमें कोई दूसरा किराएदार अभी नहीं आया था। बंगले की दोनों मंजिलों पर अंधेरा छाया हुआ था। पुलिस की गाड़ी का शोर इस बंगले की तरफ ही आ रहा था। ऐसा लगता था कि या तो किसी ने पुलिस को बता दिया था कि रेहान यहाँ गया है और या फिर पुलिस ने बंगले को दूर से देखकर सोचा था कि इसकी तलाशी ली जाए। रेहान अब यहाँ से आगे जंगल के मकान को जाने वाली सड़क पर नहीं आ सकता था क्योंकि वहां वो पकड़ा जाता। उसने यही फैसला किया कि इस पुराने खाली बंगले में किसी जगह छुप जाना चाहिए। उसे अच्छी तरह मालूम था कि पुलिस अगर इस बंगले में आती है तो वो बारी बारी सारे कमरों की तलाशी लेगी। वो कहाँ जाकर छुपे? अचानक रेहान को गैराज के नीचे जो लाशों वाला संदूक का तहखाना था उसका ख्याल आ गया। पुलिस की गाड़ी की रोशनी अब गेट पर पड़ रही थी। रेहान ने बागीचे में छलांग लगाई और दौड़ता हुआ गैराज में दाखिल हो गया। गैराज के अंदर छोटा सा दरवाजा बंद था, उस पर ताला नहीं लगा था। रेहान ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ सीढ़ियों में आकर बंद कर दिया। उसने अंदर से कुंडी इसलिए ना लगाई कि इस तरह से पुलिस को शक पड़ सकता था कि अंदर कोई है। रेहान सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में तहखाने में संदूकों के पास आकर बैठ गया कि जब पुलिस चली जाएगी तो वह बाहर निकल जाएगा। बाहर पुलिस की गाड़ी बंगले के पास आकर रुक गई। उसमें से इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ ठाकरे पुलिस के सिपाहियों के साथ उतरा। उन सबके हाथों में पिस्तौल थे। ठाकरे ने कहा, वह जरूर इसी बंगले में छुपा हुआ है, इस बंगले की फौरन तलाशी लो। 5 सिपाही टॉर्चें रोशन करके बंगले में दाखिल हो गए। उन्होंने बंगले के एक एक कमरे की तलाशी ली। बंगला खाली पड़ा था, वहां कोई भी ना था। सिपाहियों ने नीचे आकर इंटेलिजेंस चीफ ठाकरे से कहा कि बंगला बिल्कुल खाली है और पाकिस्तानी जासूस वहां कहीं नहीं। ठाकरे ने गैराज की तरफ देखा और कहा, इस गैराज की भी तलाशी लो। 2 सिपाही गैराज में आ गए। टॉर्च की रोशनी में उन्हें गैराज के सामने वाली दीवार में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। वह दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। अंदर तहखाने में लाशों के संदूक के पास बैठे रेहान ने सिपाहियों की आवाजें सुन ली थी। सिपाही नीचे तहखाने में आने वाले थे। पहले तो रेहान घबराया कि अब वह जरूर पकड़ा जाएगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो इंसानी ढांचों वाले संदूक में छुप जाए। ये सोचकर उसने कोने वाले तीसरे संदूक का ढकना खोला और उसमें छुपकर बैठ गया। उस संदूक में पहले वाले इंसानी लाशों के ढांचे नहीं थे, बल्कि 2 नए ढांचे पड़े थे। रेहान को डर जरूर लगा, मगर एक तो वो इन संदूकों से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि वह इमरान मिशकाली के साथ इस तहखाने में कई बार आ चुका था। दूसरा, उसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी। सिपाही टॉर्च की रोशनी डालते हुए तहखाने में आ गए। रेहान ने सांस रोक लिया। उसे संदूक के अंदर गर्मी में पसीना आ गया। सिपाही पहले संदूक के पास आकर रुक गए। एक सिपाही ने कहा, पाकिस्तानी जासूस यहाँ भी नहीं है। दूसरे सिपाही ने कहा, इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। पहला सिपाही कहने लगा, हमें कोई खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है, भगवान जाने संदूक में क्या है। चलो वापस चलकर ठाकरे साहब से कह देते हैं कि संदूक में कोई भी नहीं।
मगर दूसरे सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, हमें अपनी ड्यूटी पूरी अदा करनी है। संदूक खोलकर देखती हैं। और रेहान को संदूक का ढकना खोलने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही दोनों सिपाहियों के मुंह से एक चीख निकल गई। उन्होंने संदूक में पड़े हुए इंसानी लाशों के ढांचे देख लिए। संदूक का ढकना बंद कर दिया गया और दोनों सिपाही भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गए। रेहान यही समझा कि मुसीबत टल गई, मगर उसकी बदकिस्मती के इंटेलिजेंस अफसर ठाकरे बाहर गैराज में ही खड़ा था और उसने तहखाने में सिपाहियों की चीख की आवाज सुन ली थी। उसने बाहर निकलते ही घबराए हुए सिपाहियों से पूछा, क्या बात है, तुमने चीख क्यों मारी थी? सिपाही ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, अंदर संदूक में लाश का पिंजर पड़ा है। इंस्पेक्टर ठाकरे की आंखें चढ़ गईं। इसका मतलब है कि अंदर कोई खून हुआ है। चलो चलकर दिखाओ। इंस्पेक्टर ने पुलिस के सिपाहियों को साथ लिया और तहखाने में आ गया। रेहान उस वक्त संदूक में छुपा हुआ था। वो समझ गया कि अब वो पुलिस से बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर ठाकरे ने पहला संदूक खुलवाया, टॉर्च की रोशनी डाली तो उसमें इंसानी पिंजर थे। दूसरा संदूक खुलवाया, वो खाली था। जब उसने तीसरा संदूक खुलवाया तो अंदर रेहान जजीरे की पुलिस की नीली वर्दी में मलबूस छुपा बैठा था। इंस्पेक्टर ठाकरे ने रेहान को पहचानने में एक सेकंड की भी गलती न की। उसने चिल्लाकर कहा, हैंड्स अप। रेहान ने सख्त मायूसी के आलम में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसी वक्त रेहान को हथकड़ी लगा दी गई। इंस्पेक्टर ठाकरे अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। आखिर उसने पाकिस्तानी जासूस को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बाहर ले जाओ। सिपाही रेहान को हथकड़ी में तहखाने से बाहर ले आए। वीरान बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। इंस्पेक्टर ठाकरे ने कहा, यह बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है, इसे गाड़ी की सीट के साथ बांध दो। दो सिपाही रेहान को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गए। उन्होंने उसे गाड़ी में डालकर एक सीट पर बिठाया और फिर रस्सी से उसे सीट के साथ बांध दिया। रेहान ने आगे से कोई मुकाबला न किया। पुलिस की गाड़ी बंगले के अहाते से निकली और सड़क पर आकर शहर के बड़े पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। रेहान को पुलिस के साथ गई। 1 घंटा हो गया था कि एक टैक्सी बंगले वाली सड़क के किनारे रात के अंधेरे में आकर रुकी। उसमें से इमरान और मिश काली बाहर निकले। दोनों कई रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेहान को तलाश करते फिर रहे थे, मगर उन्हें रेहान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर वो इस समुंदर किनारे वाले पुराने बंगले पर भी आ गए। इमरान ने टैक्सी वाले से कहा कि वो थोड़ी देर इंतजार करे और खुद मिशकाली के साथ बंगले की तरफ बढ़ा। मिशकाली ने कहा, रेहान को इस वीरान बंगले में बैठे रहने की क्या जरूरत है? वो यहाँ आने की बजाय हमारे जंगल वाले नए मकान में आ सकता था। इमरान बोला, कुछ पता नहीं, उसके साथ कोई हादसा न गुजर गया हो। हमें बंगले की एक बार फिर तलाशी लेनी चाहिए। इमरान और मिशकाली ने बंगले के सारे कमरे देखे, वहां रेहान कहीं भी नहीं था। फिर वो नीचे गैराज में आ गई। मिशकाली तहखाने को भी देखना चाहती थी। इमरान बाहर ही खड़ा रहा और मिशकाली तहखाने में आ गई। उसने पहला संदूक खोला, वो खाली था। दूसरे संदूक में सिर्फ एक इंसानी ढांचा पड़ा था। तीसरे संदूक को खोला तो मिशकाली जल्दी से परे हट गई। संदूक में एक इंसानी खोपड़ी के ऊपर मोमबत्ती जल रही थी और एक काला सांप कुंडली मारे इंसानी खोपड़ी के सामने बैठा अपनी लाल लाल आंखों से खोपड़ी को तक रहा था। सांप बार बार अपनी जुबान बाहर निकालता। मिशकाली ने दूसरी बार संदूक में झांका। काले सांप ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर अपनी आंखें मिशकाली के चेहरे पर जमा दी। मिशकाली को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में किसी आग की गर्म लहरें दाखिल हो रही हों। वो कुछ घबरा सी गई और इमरान को आवाज देने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसका गला बैठ गया है और उसकी आवाज नहीं निकल रही। मिशकाली को पसीना आ गया।